Breeding method for the cross-pollinated crops. As the compared to the self-pollinated crop, these cross-pollinated crops have the diverse crop structures. The individual plants in this crop is not selected as in the self-pollinated crop. We usually, when we talk about the cross-pollinated crops, we can't say we improve a single plant. We set about the whole population or talk about a population, not about a plant. Because this is the feature of cross-pollinated crop. As this is a great difference between the self and cross is that in self-pollinated crop we usually talk about a single plant. Whenever whatever we're talking about the improvement, we talk about only a plant. But when we talk about the uh, cross-pollinated crop, we keep in mind a population structures. The most easy and the first method is introduction, which is similar to the self-pollinated crop, as we introduced a crop from one area to another crop. And in the case of maize, Kasan variety is introduced variety, and Azam are also introduced from the Simit, Mexico. The second one is the selection. In the case of selection, we usually increase the frequency of desirable genes, and individual plant are not selected because there is the highly heterozygous genotype segregation and outcrossing is present. How we select the population? First of all, we generate a suitable families. Among these families, we select an individual superior plants. Then we recombine these progeny for the next selection cycle. There are the different types of selection. The first one is the half sim selection. Half sim selection, full selection, recurrent selection. These are the types of selection in cross-pollinated crops. Like half sim selection, in this selection we kept only one parent common, like usually that parent is the female, and we use the different male parent for the improvement of this crop. While in case of full sim selection, we keep the both parent in common. We usually use two parents in common, which is generally used in each every cross. While in recurrent selection, this is method is specially designed to increase the frequency of our desired allele by the repeated cycle of the selection. We select the one-time population from a plant, then mix the seed and grow the population from that selected plant. And in next year, again we select few plants from that population and then mix the seed and again grow this population and again select this plant. So we repeat the selection again and again for the improvement of this crop. Uh, and with this, again and again selection, we usually focus on a single trait, which is our trait of interest. Like if we select the plant one time from a population on the base of spike length, in the next year we also select the plant on the base of the spike length, not on the number of seeds or anything else. So identify the superior genotype for the trait under selection. Then we intermediate the superior and select the proved progeny. First one, we select the best plant from a population. Then we intercross these plants to form the next generation. Plant the source population, which is local variety, synthetic variety, bulk population, rogging out the undesirable plant. Undesirable plants को उसमें से हमने रिमूव कर देना है बिफोर फ्लावरिंग, क्योंकि अगर फ्लावरिंग के बारे में करें तो मे भी, क्योंकि ये क्रॉप क्रॉस पोलिनेटेड है, अगर हम उसको फ्लावरिंग तक लेके जाते हैं, कुछ अंदर इंफीरियर जीनोटाइप्स होते हैं, इंफीरियर प्लांट्स होते हैं, उनकी क्रॉसिंग हो जाए, उनके पोलन्स में भी हमारे अच्छी जीनोटाइप्स को पोलिनेट कर दें, तो वो अच्छी जीनोटाइप्स भी 50% अपनी यील्ड को रिड्यूस कर दें।
इसलिए जो प्लांट्स हमें लगे कि ये प्लांट्स अच्छे नहीं हैं, इनकी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये फिजिकली अच्छे नहीं लग रहे, फिट नहीं है, हम उनको रिमूव कर देते हैं। देन जब पोलिनेशन के बाद सीड बन जाना है, उनमें से हमने 100 प्लांट्स को ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, सेवरल 100 प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनकी सीड को बल्क कर देना है। सेकेंड ईयर में अगेन हम वो बल्क सीड जो है उनको लगाएंगे और उनमें साथ एक चेक भी लगाएंगे। अब चेक क्या होता है? एक अनसिलेक्टेड पॉपुलेशन है। चेक वैरायटी एक ऐसी वैरायटी होती है जो उस एरिया में लोकली अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। देन हमने ऑलमोस्ट ईयर 3 में भी अपने इस रिकरेंट सिलेक्शन के साइकिल को रिपीट करना है और आफ्टर 3 इयर्स, इन 4th ईयर्स हमने उसमें यील्ड ट्रायल्स करने हैं। स्टार्ट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं, वैरायटीज जो डेवलप होती हैं इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप से, क्योंकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन हुई होती है, डिफरेंट पोलर्स यूटिलाइज हुए होते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें जो अडॉप्टेबिलिटी है वो इसकी काफ़ी वाइडर होती है, यानी वो ऑलमोस्ट हर एरिया में आप कह लें कि वो इजीली अडॉप्ट हो सकती है। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन हुई होती है। क्रॉस पोलिनेशन का ये सबसे बड़ा एम यही है इसमें कि वो जो क्रॉप्स होती हैं क्रॉस पोलिनेटेड, वो वाइडर अडॉप्टेबल होती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज सिंपल एंड इजी क्विक। डिसएडवांटेजेस आप इसके क्या है? एज सच कि हम इसमें फिनोटाइपिक सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि क्या ये जो सुपीरियर प्लांट जो अच्छे प्लांट्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट की वजह से अच्छा कर रहे हैं, क्या उनका जेनेटिक मेकअप अच्छा है। हमारे पास उसका कोई प्रोजेनी टेस्ट नहीं हुआ होता, तो हम उसको एक फिजिकली उसकी अपीयरेंस की बेस पे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिजिकली बेस पे सिलेक्ट करना एक काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता होता कि वो किस लिहाज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिहाज से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सेकेंडली इसमें कोई पोलन का कंट्रोल नहीं होता कि आइदर कि जो पोलन हमारे सिलेक्टेड प्लांट्स को पोलिनेट कर रहा है, क्या वो हमारे डिजायरेबल प्लांट से आ रहा है या हमारे अनडिजायरेबल प्लांट से आ रहा है। थर्ड ये होता है कि जितनी भी सिलेक्शन इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये होता है कि जब भी हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में सेल्फ पोलिनेशन की तरफ मूव करते हैं, उनको फोर्स करवाते हैं सेल्फिंग पे, तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है और वो यील्ड को लॉस करते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम है रिकरेंट सिलेक्शन की। फर्स्ट ऑफ वन, अब ये हमारे पास एक सोर्स पॉपुलेशन थी, इनमें से हमने इन प्लांट्स को सिलेक्ट किया जो सुपीरियर्स थे हमारे अपने किसी भी कैरेक्टर्स के लिए, या अब इन प्लांट्स की हमने प्रोजेनीज रोज को ग्रो किया और इनको आपस में क्रॉस करवाया, जिस भी पॉसिबली ये क्रॉस हो जाते, अब आपस में इन्होंने क्रॉस किया, जैसे भी क्रॉस किया। अब सेकेंडली हमने क्या किया, एक हमारा जो साइकिल था वो पूरा हो गया, कितने 2 इयर्स में पूरा हुआ ये साइकिल। देन हमने इन जो प्लांट सुपीरियर्स थे इनके सीड्स को इनको क्रॉस किया और इनके जो सीड्स थे उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास अगेन एक सोर्स पॉपुलेशन बन गई। इस जो सीड जहाँ से हमने लिया उसको अगले ईयर दोबारा नेक्स्ट ईयर में हमने ग्रो करवाया। अब इस ईयर में हमारे पास जो यहाँ पे जो अच्छे प्लांट्स परफॉर्म किया, हमने उनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन उनको ग्रो करके आपस में क्रॉस कराया और उनके सीड को कंपोजिट किया। कंपोजिट करने के बाद अगेन लगाया और
अगेन इसी तरह हमने क्रॉस करवाया। तो ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें ये ना हो कि अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग रहे हैं, हमारी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब फर्दर हम इनमें कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते, जो भी प्लांट्स हैं वो अच्छे हैं, किसी प्लांट्स को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अप टू 2 रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल्स तक जाएं किसी भी क्रॉप में, अप टू 2 रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल्स तक जाएं तो हमें कितने ईयर्स चाहिए होंगे? अप टू टू रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल्स टोटल कितने ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे? एनीवन? नो वन नो। 6 ईयर्स चाहिए होंगे। सो आप लोगों ने हाइब्रिड्स का नाम सुना होगा कि हाइब्रिड्स क्या होते हैं? Hybrid is actually a cultivar, first generation cultivar cross between the two inbred lines.